So we are going to discuss drama, how to study drama and studying drama. The texts of plays can be read as distinct from being seen and heard in performance. The term dramatic literature implies a contradiction in that literature originally meant something written and drama means something performed. Most of the problems and much of the interest in the study of dramatic literature stem from the contradiction. Even though a play may be appreciated solely for its qualities as writing, greater rewards probably acquire to those who remain alert to the volatility of the play as a whole. In order to appreciate this complexity in drama, however, each of its element, acting, directing, staging, etc., should be studied so that its relationship to all the others can be fully understood. Because of the elements of performance, drama generally transcends the textual dimension of other two major literary genres, fiction and poetry. Although the written word serves as the basis of drama, it is in the end intended to transform into a performance before an audience. In order to do justice to this change of medium, we ought to consider text transformation and performance as three independent levels of play. So, the dramatic literature implies a contradiction that literature originally meant something written and drama means something performed. Yes, dramatic literature को आपने समझना है बेसिकली कि लिखे जाने वाला लिटरेचर इज समथिंग एल्स और उसी लिटरेचर को परफॉर्म कर देना दैट इज़ कॉल्ड ड्रामा. ठीक है, लिखे हुए लिटरेचर को परफॉर्म करने का नाम क्या है? ड्रामा. बेसिकली हमने पहले पढ़ा था, नावल को भी देखा हमने. अगर आपको याद हो, जनराज ऑफ पोइट्रीज़ जब हम पढ़ रहे थे, जनराज ऑफ लिटरेचर जब हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने देखा कि ड्रामा क्या होता है, नावल क्या होता है. सो बेसिकली ड्रामा इज़ अ थिंग विच इज़ बीइंग परफॉर्म्ड, ठीक है ना, on a stage while you need something specific to do something act. And as well as history of English literature is concerned, drama is having a lot of contradiction there now. So we have to discuss, first of all, text is there. So since many textual areas of drama, character, plot, setting overlap with aspects of fiction which have already been explained, the following section will only deal with those elements specifically relevant to drama. Within the textual dimension of drama, the spoken words serve as the foundation of dialogue, verbal communication between two or more characters, and monologue, soliloquy. The aside is a special form of verbal communication on stage in which the actor passes on the audience information which remains unknown to the rest of the characters in the play. So the basic element of plot, including exposition, complication, climax, and denouement, have already been explained in the context of fiction. They have their own origin in classical descriptions of the ideal course of a play and were only later adopted for analysis of the other genres. In connection with plot, the three unities of time, place, and action are of the primary significance. These unities prescribe that the time span of the action should roughly resemble the duration of the play, and that the place where the action unfolds should also remain the same. Furthermore, the action should be consistent and have a linear plot. So the text is a very first thing in the drama, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है. आपके करेक्टर्स हैं, आपकी और बहुत सारी चीज़ें हैं. प्लॉट को आप देखते हैं, आपकी और भी काफ़ी सारी डोमेन्स हैं जो कि आप वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू बेसिकली बाज़ औक़ात टेक्स्ट के अंदर जब परफॉर्मेंस होती है, तो जैसा कि उसने भी बताया कि आपके ड्रामा के अंदर काम करने वाले बाकी कैरेक्टर्स को भी पता नहीं होता कि उन्होंने क्या परफॉर्म करना है अदर्स को. बट द थिंग इज़ दैट कि जिन्होंने परफॉर्मेंस करनी होती है, दे हैड समथिंग टू डू बिफोर द ऑडियंस. उनको टेक्स्ट प्रोवाइड की जाती है, उनको डायलॉग्स प्रोवाइड किए जाते हैं. बेसिकली दैट इज़ लिटरेचर एंड दैट इज़ ड्रामेटिक लिटरेचर, जो उनको लिख के दिया जाता है एंड दे हैव to perform before the audience, and they need some sort of, you can say, stage, some sort of dimension, some sort of genres are there. So the text is very first
element in the drama which is going to be discussed in history of English literature as well as our lecture is concerned. तो बाज़ औक़ात आपने देखा होगा, आप आगे जाके भी पढ़ेंगे, जब आपको कोई ड्रामा पढ़ाया जाएगा तो उसके अंदर बेसिकली पूरा टेक्स्ट होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, ठीक है। कभी दो कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं, कभी खुद कैरेक्टर अपने आप से बात कर रहे हैं, एक कैरेक्टर खुद से बात कर रहा है, कभी चार कैरेक्टर एक दूसरे से बात कर रहे हैं. सो द टेक्स्ट इज़ वेरी कंपल्सरी एलिमेंट इन द ड्रामा एंड दैट इज़ वेरी first point. So the second points, indirectly related to the last paragraph, to the three unities is the division of a play into acts and scenes. जी, फिर उसको क्या किया जाता है कि उसी टेक्स्ट को सीन्स और एक्ट्स में क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, उनकी डिवीजन कर दी जाती है कि ये सीन फ़लाँ एक्ट का है, ये सीन फ़लाँ एक्ट का है. मुख्तलिफ एक्ट्स और मुख्तलिफ सीन्स को जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है विद इन टेक्स्ट. होती वही टेक्स्ट है जो जिसको हम क्या कहते हैं, ड्रामेटिक लिटरेचर कहते हैं. बेसिकली लिटरेचर वही होता है, लेकिन उसको जब हम चेंज करते हैं विद इन द सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिक डिमेंशन दैट इज़ बीइंग चेंज इन ड्रामेटिक लिटरेचर विद इन डायलॉग्स. बात की समझ आ रही है ना कि बेसिकली टेक्स्ट को जब हम परफॉर्म करते हैं विद इन डायलॉग एंड विद इन अ स्पेसिफिक डोमेन ऑफ स्टेज दैट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू ड्रामेटिक लिटरेचर. सो द सेकंड पॉइंट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन. Transformation, an important part of dramatic production in the 20th century, refers the connecting phase between text and performance. Yes, that is the point and that is transformation. आपका text से लेके performance तक का जो एक medium है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, आपको कोई ना कोई टेक्स्ट दे दी जाती है और आपको कहा जाता है कि दैट यू हैव टू परफॉर्म. जब आप स्कूल लेवल पे थे या आप कॉलेज लेवल पे थे या आप अकेडमीज़ लेवल पे थे तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम जब होते हैं वहाँ पे तो आपको बोल बताए जाते हैं कि दैट यू हैव टू डू एंड यू हैव टू स्पीक दैट वन एंड दैट द फेज़ कि आपको टेक्स्ट का मिलना और उस टेक्स्ट को आपने क्या करना है, परफॉर्म करने के अमल को क्या कहते हैं, इसके दरमियान वाले मीडियम को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन. के आपकी बातों को या आपके लिखे हुए लिटरेचर को जब आप तब्दील करते हैं किसकी शक्ल में, विद इन एक्ट्स, विद इन यू कैन से परफॉर्मेंस, दैट इज़ बीइंग कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. सो इसके अंदर जो है और इतना कोई ख़ास इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है. दैट इज़ वेरी सिंपल वन, द प्रोडक्शन. इफ़ यू हैव टू pour here, the production in the 20th century refers to the connecting phase between text and performance. That is the thing. ये पूरी बात उसने एक ही लाइन में बंद कर दी है, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. The third one is performance, the last phase. The performance focuses on the actor who conveys the combined intents of the author and director. It has only been during the last 100 years that the methodological training of actors has established itself as a theoretical phenomena alongside directing. Until the end of the 19th century, the transformation of the text was almost entirely in the hands of the actors. ठीक है, तो बेसिकली द लास्ट थिंग इज़ परफॉर्मेंस. पहले ही था आपका टेक्स्ट, और टेक्स्ट को बिफोर गोइंग विद द परफॉर्मेंस यू हैव टू ट्रांसफॉर्म, एंड द लास्ट थिंग इज़ परफॉर्मेंस. के आपने जो चीज़ आपको दी गई है, जो टेक्स्ट आपको दिया गया है, जो एक्शन आपको करने को कहा गया है, उन एक्शंस को व्हेन यू हैव टू परफॉर्म दैट इज़ योर परफॉर्मेंस. और वो फिर मुख्तलिफ, हम पहले बात कर चुके हैं कि टेक्स्ट को आप डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ किस्म के सीन के अंदर, मुख्तलिफ किस्म के एक्ट्स के अंदर. तो बेसिकली उन सब को जब आपने एक शक्ल देनी है, आपने उनको आके परफॉर्म करना है, दैट इज़ योर कॉल्ड परफॉर्मेंस. और ये जो है विद इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हर दौर में ये चेंज होता रहा है. ठीक है, कभी कुछ हालात थे ड्रामे के, कभी कुछ थे, कभी कुछ थे, कभी कुछ थे. कभी उसके अंदर क्या कहते हैं, कॉमेडी की बात की जाती थी, कभी ड्रामे, कभी क्या कहते हैं ट्रेजेडी की बात की जाती थी, कभी सोललिकी की बात की जाती थी, कभी मुख्तलिफ़ किस्म के आपके जो क्या कहते हैं उसको सोसाइटीज़ के इश्यूज़ के ऊपर बात की जाती थी. एंड दैट डिफर्स बिटवीन विद इन द यू कैन से यूर राइटर. जिस डोमेन में, जिस भी इरा में जिस टाइप का राइटर आया है और राइटर के साथ साथ जिस तरह के सराउंडिंग्स के हालात थे, उसी नोयत से राइटर ने उन हालात में लिखना
शुरू किया और उसी जो हिस्ट्री जो बनी है, बेसिकली हिस्ट्री ऐसे ही बनी है ना कि एक एज के अंदर अगर एक राइटर आया तो उसने पकड़ के सारी ट्रेजेडीज़ लिख दी, ठीक है, दूसरी एज में दूसरा राइटर आया उसने पकड़ के सारी कॉमेडीज़ लिख दी। सो दैट इज़ द थिंग कि इसी तरह जो है ड्रामा क्या होता है, बिल्डअप होता है। नेक्स्ट है देयर आर टू बेसिक theoretical approaches to modern acting, the external or technical method and the internal or realistic method, ठीक है। ये internal and external as it is being mentioned with the name, internal क्या होता है और external क्या होता है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। In the external method the actor is supposed to be able to imitate the moods required in the part by using certain techniques but without actually feeling these moods। जी, बाज़ औक़ात राइटर को कुछ करना, जो आपका एक्टर होता है उसको वो अंदर से फीलिंग्स नहीं आ रही होती, वो एक्सटर्नल होती हैं उसकी। अब आप अगर ड्रामे देखें, आप मूवीज़ देखें तो उसके अंदर हो सकता है कि वो जो रो रहा है वो असली तो नहीं हो सकता ना, जस्ट ड्यू टू टेक्स्ट, जैसा उसको बोलने के लिए कहा गया है वो वही परफॉर्म करता है। एंड दैट इज़ नॉट बीइंग इन्वॉल्व इंटरनल इमोशंस। इंटरनल इमोशंस आर समथिंग एल्स। वो बेसिकली दे you can say the actual emotions are internal but you can say imitate emotions are external। जो बाज़ औक़ात हम क्या कर रहे होते हैं, या एक्टर कर रहा होता है या कोई और आपसे बड़ा माशाल्लाह कोई एक्टर नहीं है, तो एज ए बीइंग स्टूडेंट आप भी बाज़ औक़ात क्या कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिंग जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं कि असाइनमेंट से कैसे बचा जाए, प्रेजेंटेशन से कैसे बचा जाए, या अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो एक्सक्यूज़ कैसे करना है, मुख्तलिफ़ किस्म की डायमेंशंस। और इन द रियलिस्टिक मूड अगर आप देखें तो हमें आसपास बहुत सारे एक्टर्स देखने को मिलते हैं। But without actual feelings, these mood, it relies on the impressions and simulation. The internal methods, however, builds on individual identification of the actor with his parts, personal experience of feelings, and the internalization of emotions and situations that are required in the part. Underline the internal method. Drama, more than other genre, relies on acting character, dramatize persona, and thereby gives rise to aspects that apply only to this genre. So, for instance, one cannot take for granted the interaction of several characters within a play. Originally, the chorus was the counterpiece of classical drama, and only later were more characters added, creating the conditions for a dialogue between the figures and the chorus. The latter was originally a conveyor of lyrical points which partly commented on the actions of the play and the partly addressed to the actors in the dedicated manner. The chow had a special status in Elizabethan theatre too, filling times gaps and informing the audience about new situation. The term flat and the round for the character are as valid for the drama as they are for fiction. Some type of drama like comedy have recurring character types called stock characters, including the boastful soldier, the cranky old man as the crafty servant. So इसके अंदर अब वो हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ किस्म की टर्म्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है, जैसे कि कोरस का उसने बताया, मुख्तलिफ़ मीन्स कि ड्रामे के अंदर जो टर्म्स हैं वो और है। अब ड्रामे के अंदर किरदार का नाम भी और हो सकता है, ठीक है, हम हो सकता है उसको एक्चुअल लाइफ में कुछ और कहते हों, हम हो सकता है उसको रियल लाइफ में कुछ और कहते हों, लेकिन विद इन अ ड्रामा जो सिचुएशन है बेसिकली विद इन इंग्लिश लिटरेचर दैट इज़ समथिंग एल्स। You can see the French literature is something else, Spanish literature is something else, Urdu literature is something else, but we are going to discuss about इंग्लिश लिटरेचर स्पेसिफिकली। सो दैट इज़ द थिंग। वो भी हमें यही बताना चाह रहा है कि जो ड्रामा है उसका इंटरनल और एक्सटर्नल फीलिंग के साथ बाज़ औक़ात लिंक होता है और बाज़ औक़ात आपके प्लॉट के साथ भी लिंक होता है, और बाज़ औक़ात एक कैरेक्टर जो है वो बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को निभा रहा होता है और बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा कैरेक्टर को भी वो नहीं प्ले कर रहा होता। सो दैट इज़ द वेरी कॉमन एग्जांपल कि आजकल अगर आप देखते हैं ड्रामे तो मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामे हैं, उसके अंदर भी अगर आप देखें तो ये अभी आजकल एक आ रहा है ड्रामा, वो मुझे नाम उसका नहीं आ रहा, बदनसीब अगर आप में से कोई देखता है तो दैट इज़ द थिंग कि उन्होंने 1 मिनट में पकड़ के 12 साल गुजार दिए, ठीक है। पहले वो शुरू करते हैं जी छोटे बच्चों से, ठीक है, छोटे बच्चों से शुरू होता है, 5, 6, 7, 8 किस्तें दिखा के फिर आराम से कह देते हैं आफ्टर 12 ईयर्स,
ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो है ये चीज़ें क्या होती हैं, बेसिकली ये दैट इज़ अ टेक्निकल फॉल्ट, और यू कैन से दैट इज़ अ टेक्नोलॉजी, यू कैन से टेक्नोलॉजिकल इरा, कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक पलक झपकने में नज़र आ जाती हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप यही चीज़ें उनसे पूछें जो परफॉर्म करते हैं, तो वो कहेंगे कि इनके ऊपर हमें बहुत सारे दिन लगे हैं। तो हमारे सामने जो चीज़ें आती हैं वो बाज़ औक़ात जस्ट विद इन यू कैन से सेकेंड्स वो हमारे सामने क्या हो जाती हैं, प्ले हो जाती हैं। सो दैट इज़ द थिंग।